ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग में जो पहला कंपाउंड है वो कौन है आपका, बेंजीन। एंड वी नो दैट बेंजीन जो होता है आपका, दिस इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड एंड दिस इज़ नॉट इफेक्टेड बाय अ यूजुअल ऑक्सीडाइजिंग reagent, and for this reason this benzene is used as a solvent for different reaction. However, on aerial oxidation with in the presence of vanadium pentaoxide at 300 degrees Celsius temperature, it gives a maleic anhydride. Other aromatic compound like naphthalene, anthracene, phenanthroline, so on oxidation result either the loss of one benzene ring, means there is a cleavage of one ring, or there is a formation of quinone. There are two types of reaction in which one benzene ring cleaved, and second one is there is a formation of, there is no cleavage of benzene ring, but there is a formation of quinone. So there is a formation of quinone. So here this is naphthalene with KMnO4 in acidic condition, one benzene ring cleaved and it gives a phthalic anhydride. On ozonolysis again one benzene ring cleaved, it gives a phthalic acid, here again phthalic acid. But on aerial oxidation in the presence of vanadium pentaoxide, it gives phthalic anhydride. So there is a formation of phthalic acid and phthalic anhydride on the oxidation of KMnO4. Next one is quinoline. Quinoline is when benzene ring and pyridine ring fused, it gives quinoline. So quinoline on oxidation with KMnO4 or chromium trioxide, this benzene ring cleaved and it gives this quinonine acid. On heating, one carbon dioxide molecule removed from here and it gives this nicotinic acid. क्या देता है आपका, nicotinic acid, and it's a method for the synthesis of this nicotinic acid. Second one is isoquinoline. This is isoquinoline. On oxidation with chromium trioxide, it gives cinchomaronic acid. This one is cinchomaronic acid. Next one is, this is naphthalene, but this naphthalene on oxidation with chromium trioxide, so generally chromium trioxide gives quinones बनाता है, क्या बनाता है, quinone. So on naphthalene with oxidation with chromium trioxide, it gives 1,4-naphthoquinone. 1 2 3 4 1,4-naphthoquinone. Next one is, this is methyl naphthalene. Again this on oxidation with chromium trioxide and the solvent is acetic acid, CS3COH. So this ring converted into quinone ring, so it gives this compound and its name is menadinone. ठीक है. Next one is, this is anthracene. Again with chromium trioxide in acetic acid, it gives anthraquinone. क्या देता है, anthraquinone. Next one is oxidation. So here this is a oxidation of normal aromatic ring. Now oxidation of phenolics. तो phenolics के oxidation में क्या होता है, जनरली जो K3FeCN6 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं, लाइक K3FeCN6 यूज़ किया जाता है. तो ये क्या करता है आपका, देयर इज़ अ डाइमराइजेशन टाइप रिएक्शन हो जाती है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज फिनॉल विद दिस 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, इट गिव्स फिनॉल रेडिकल, फिनॉक्साइड रेडिकल. ओके. तो ये रेडिकल क्या है, देखो फिर रिजोनेट हुआ 1 2 3, तो यहाँ आ गया एंड 1 2 3 इधर आ गया. इट मीन्स देयर इज अ जनरेशन ऑफ डिफरेंट रेडिकल बाय दिस रिएक्शन. एक कैसा रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन में रेडिकल है, सेकंड जिसमें ऑक्सीजन के ऑर्थो में रेडिकल है, थर्ड वन इज व्हेन पैरा में रेडिकल है. तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, या तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, या इन दोनों को कंबाइन कर दो, या इन दोनों को कंबाइन कर दो, डाइमराइज कर दो, या ये इसके साथ डाइमराइज हो जाएगा, या फर्स्ट थर्ड के साथ डाइमराइज हो जाएगा. तो क्या होता है, वैरायटी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज दिस वन. If we write first, second and third, so this one is second, and if it combine with another same molecule, तो इस तरीके का बन जाएगा. एंड फाइनली बाई टॉटोमेरिज 1 2 3 1 2 3, ये क्या बन जाता है आपका, इस तरीके क्या बनते हैं आपका
डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही पैरा में बनाओगे तो पैरा में ये बन जाएगा, ऐसे ही ऑर्थो पैरा का बनाओगे तो ये बनेंगे। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑक्सीजन वाला भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिनॉक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेंट है जैसे K3FeCN6 है, उसके केस में क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और क्या बोल जाते हैं, आपका एराइल ऑक्सी रेडिकल्स को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, फिनॉक्सी रेडिकल जनरेट हो जाता है और जो फिनॉक्सी रेडिकल होता है फिर वो क्या होंगे, कोई भी रेडिकल कंबाइन होकर फाइनली आपके प्रोडक्ट को बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस वन, नेफ्थॉल है। तो नेफ्थॉल का भी Fe+3 है, तो क्या बनेगा आपका, इसका रेडिकल जनरेट हो जाएगा। रेडिकल जनरेट होकर 1 2 3 इस पोजीशन पर आ गया एंड अगेन देयर इज अ डाइमराइजेशन ऑफ दीज 2 रेडिकल्स, तो ये 2 रेडिकल कंबाइन होंगे, ये बनता है एंड फाइनली क्या होता है, टॉटोमराइज हो जाएगा एंड टॉटोमराइज होकर क्या बन जाता है आपका, ये फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिनॉल के इस पोजीशन में, पैरा पोजीशन में ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाती है, किससे, फ्रेमी सॉल्ट से। तो ये क्या होता है आपका फ्रेमी सॉल्ट NSO3K और रेडिकल। तो ये क्या करता है आपका, देखो ये भी क्या करता है आपका, ये रेडिकल, इसको यदि रेडिकल है तो ये रेडिकल इनिशिएट करेगा, तो ये क्या बनेगा आपका फिनॉक्सी रेडिकल। ये क्या हुआ आपका 1 2 3 1 2 3, इसका एक कौन सा फॉर्म दिखा दिया फिलहाल यहाँ पर को, पैरा में रेडिकल आ जाएगा एंड फाइनली जो ये फ्रेमी सॉल्ट है वो क्या करेगा, इसके और इसके साथ क्या बनेगा, रेडिकल है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और फाइनली क्या हुआ आपका, यहाँ से क्या निकल गया H और यहाँ से ये H यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो किसका मतलब क्या हुआ, जो फिनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूनॉन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूनॉन में। जब क्या होता है, पैरा पोजीशन ब्लॉक होती है तब क्या होता है आपका, जो ये तो पैरा क्यूनॉन है, ये 1 4 है ना, 1 2 3 4, दिस वन इज पैरा क्यूनॉन। इफ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन क्या बनता है आपका, 1 2 क्यूनॉन बनता। फॉर एग्जाम्पल दिस वन देखो, फिनॉल, अच्छा ये है आपका एक फिनॉल है जिसमें कि पैरा पोजीशन में टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है और इसका फ्रेमी सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो 1 4 पोजीशन में ना बन के क्या बनता है, 1 2 क्यूनॉन्स बनते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन क्या हुआ आपका, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट NH2 अटैच होता है, दैट इज एरोमेटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन क्या करते हैं, आपका जो NH2 ग्रुप होता है दैट कन्वर्टेड इनटू, दो चीज़ हो सकती है देखो, या तो क्या होता है NH2 किस में कन्वर्ट हो जाए, NO2 में, या क्या हो सकता है जो बेंजीन रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको रिएजेंट याद करने क्या है, NH2 NO2 में कब कन्वर्ट होता है, जब ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज अ मटीरियल व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज विथ ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड और NH4 होल ट्वाइस S2O8 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है आपका जो NH2 ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू और NO2। तो जो एमीन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो क्या होता है आपका, या तो NH2 NO2 में कन्वर्ट होगा या एरोमेटिक रिंग जो है वो आपका क्यूनॉन में कन्वर्ट होगा। बस आपको रिएजेंट याद करना है कि NH2 का NO2 में इसमें इनसे कन्वर्जन है और जो एरोमेटिक बेंजीन है वो किससे होती है आपकी, मैग्नीज डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा बेंजो क्यूनॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये था आपका किसका, एरोमेटिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में क्या क्या है आपका, पहले हमने क्या पढ़ना है, एरोमेटिक कंपाउंड में नॉर्मल बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। बेंजीन रिंग के में भी हमने डिफरेंट पढ़ना है, KMNO4 है, K2Cr2O7 है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन और क्या है आपका V2O5 है। तो ये कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं किसके ऑक्सीडेशन में, जब हम बेंजीन रिंग का पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किसका है आपका, फिनॉल का। तो फिनॉल के लिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेंट है वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं K3FeCN6। तो पहला वो है आपका, और होना कुछ नहीं है, डाइमराइज हो जाते हैं। जो फिनॉलिक कंपाउंड है, नेफ्थॉल है तो वो डाइमराइज हो जाएगा, फिनॉल है तो डाइमराइज हो जाएगा और क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें एक और है, कौन सा सॉल्ट आता है आपका, फ्रेमी सॉल्ट। वो क्या करता है, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है फ्रेमी सॉल्ट। ठीक है, एंड थर्ड क्या पढ़ना है आपका, एमीन का पढ़ना था आपका। तो एमीन के केस में क्या है आपका, सिर्फ या तो NH2 किस में कन्वर्ट होगा आपका, NO2 में, या जो बेंजीन रिंग है वो क्या बनाती है आपकी क्यूनॉन